आसनसोल के रविंद्र भवन में आज लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। यहां भाजपा से टीएमसी में आए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। साथ ही मंत्री मलाय घटक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके अलावा सांसद कल्याण बनर्जी, टीएमसी विधायक डॉक्टर प्रदीप मजूमदार, निर्वाहा हांसदा, अभिजीत घटक, शिवदासन उर्फ दासू, जयप्रकाश मजूमदार, मिन्नती हाजरा, पार्षद गुरदास चटर्जी, अशोक रुद्रा, रुपेश यादव, श्रीकांत मेहता, अल्पना बनर्जी, युवा नेता स्नेहाशीष चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। আজকে এখানে উপস্থিত আমার তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানাই এবং আমাদের এখানে যিনি প্রার্থী হয়েছেন সেই শত্রুঘ্ন সিনহাজি এসছেন, ওনাকেও আমি আমাদের ভাষায় জোহার জানাই। আমার খুব ভালো লাগছে যে যখন সিনেমার কথাটা দাদা বলেই দিলেন যে আসানসোলটা এমন একটা জায়গা যে আসানসোল আজকে আমাকে একটা নাম দিয়েছিল। যেমন প্রথম যখন ফিল্মে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম সেটা কিন্তু আসানসোলের থেকেই করেছিলাম এবং সেটা আল্লাহর মতো একটা জায়গায়। তো সেই জায়গা থেকে আসানসোলের প্রতি একটা ভালোবাসা প্রথম থেকেই ছিল এবং যেদিন আমরা ক্যাবিনেট মিটিং করছিলাম আমাদের সকলের প্রিয় দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মলয় স্যারকে বললেন যে বিধবাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি এক কথায় রাজি হয়েছিলাম, কারণ আসানসোল আমার মনের মধ্যে একটা জায়গা করে আছে। আজকে যে জায়গায় আমি পৌঁছেছি সেই জায়গাটা কিন্তু আসানসোলের মানুষেরা আমাকে দিয়েছিলেন। তাই আসানসোলের প্রত্যেকটা মানুষকে, বড়দেরকে প্রণাম, ছোটদেরকে ভালোবাসা জানিয়ে দু এক কথা বলবো, কারণ আমি খুব কম কথা বলি এবং কাজে বিশ্বাস করি। সেই জায়গা থেকে আবার অনেকে আছেন যারা বলবেন যে আমরা সবাই এখানে এসেছি একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আগামী 12 তারিখ যে উপনির্বাচন আছে সেই উপনির্বাচনে আমাদেরকে জিততে হবে। তো আপনাদের কাছে শুধু বলতে চাই যে এনারা আজকে নেই বা মন্ত্রী নেই, এটা দুঃখের নয়। দুঃখের কি জানেন? দুঃখের হচ্ছে ভারতবর্ষ দুটো বড় সম্পদকে হারিয়েছে, তাদেরকে শুনতে পায় না। আজকে ফিসক্যাল পলিসির উপর, ফাইন্যান্সিয়াল পলিসির উপর, এডুকেশন পলিসির উপর, বিভিন্ন পলিসির উপর যশবন্ত সিনহার মতো মানুষ। আমি একটু আগেই বলছিলাম যে আমি যে বিজেপিকে দেখেছি, মুরলী মনোহর জেসি, আমি তার সঙ্গে কাজ করেছি, চেয়ারম্যান ছিলেন আমার এস্টিমেট কমিটি। আমি উল্টো দিকের লোক, কিন্তু আমি একদিন বলেছিলাম ওনাকে, আমি একটু আগে যশবন্ত सिन्हा বলেছিলাম যে सर मेरा चांस मिल जाता तो आपको पैर में बैठ के हम कुछ काम सीख लेता, आपके पास से कुछ ज्ञान ले लेता आपके पास से। ऐसा सब आज সেই সব নামি দামি ব্যক্তিদের বিজেপিতে কোনো জায়গা নেই। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বন্ধুপতি এবং মন্ত্রী, ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার মলয় ঘটক, প্রদীপদা রয়েছেন এমএলএ, শ্রীকান্ত মন্ত্রী রয়েছে, স্নেহাশিস রয়েছে। বলেছিলেন যে আমাদের যারা কাউন্সিলর, আমাদের যারা ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট, অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবেন বলে। আমি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছি না, বক্তব্য রাখতে রাখতে গলাও ধরে গেছে। যেহেতু আজকে কাউন্সিলররা আছেন, পার্টির নেতৃবৃন্দরা আছেন, আমি আপনাদের বলবো মাঝে মাত্র 3টে দিন, চতুর্থ দিনেই কিন্তু ভোট। এই 3টে দিন মানে 72 ঘন্টা।
এই 72 ঘন্টা কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। আমরা প্রথম দিন থেকেই নির্দেশ দিয়েছিলাম কাউন্সিলরদের, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টদের, যে আপনারা বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে হবে। আমরা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা লিফলেট আপনাদের কাছে দিয়েছিলাম, যে সেই লিফলেটটাও বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। আজকের থেকে আমাদের একটা টিম আমাদের সেন্ট্রাল অফিসে কাজ করবে। তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ায় ফোন করবে এবং তারা ফিডব্যাক নেবে সেই লিফলেটগুলো পৌঁছেছে কিনা এবং কাউন্সিলররা বাড়ি বাড়ি গেছে কিনা। যে যে কাউন্সিলররা বাড়ি বাড়ি যাননি, আমরা হয়তো রাতে কিছু কাউন্সিলরের খবর পাবো, তাদের সাথে যোগাযোগ করব। কাউন্সিলর হয়ে গিয়ে দলের হয়ে আপনার ওয়ার্ডকে জেতাতে হবে। আপনি জিতেছেন, আপনার দায়িত্ব আপনার ওয়ার্ডকে জেতানো, এবং সেই জেতাতে গেলে কী কী প্রয়োজন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাথে থেকে আপনাদের যেটা প্রয়োজন আমরা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই 3টে দিনের মধ্যে আগামীকাল 3টের সময় গ্র্যান্ড হোটেলের সামনের থেকে একটি পদযাত্রা, আমাদের প্রার্থী থাকবেন, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী এবং যে নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীরা আমাদের এখানে থাকবেন, তারা সবাই মিলে এমন একটা পদযাত্রা করতে হবে যেটা আসানসোলের একটা ইতিহাস তৈরি হবে, যে এত বড় পদযাত্রা যা কখনো হয়নি। लेकिन तब ये पार्टी नहीं थी जो आज है भारतीय जनता। आज की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चली गई और इनको मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको अगर मतलब है तो केवल पावर से मतलब है। किसी तरह अपने को सत्ता में बना के रखो, यही है उनका मुख्य उद्देश्य है। और उसमें जो भी गलत काम करना पड़ेगा वो गलत काम करेंगे, लेकिन सत्ता में बनेगा। शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पहुंचेंगे और जिस दिन वहां उठकर दहाड़ेंगे शेर की तरह, तो वो दोनों जो गुजराती हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, दोनों का दिल दहल जाए। इसलिए सब लोगों की निगाह टिकी है आज आसनसोल में। लोग इस तरफ देखने लगे और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आसनसोल को ही न बचाना है, बल्कि भारत के सोल को भी बचाना है, उसकी आत्मा को बचाना है। यह आपके ऊपर दायित्व है। मैं कुछ आपको व्यक्तिगत बताऊं तो मुझे एक समय प्रतीत होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का अब दुर्दिन आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है वो गलत दिशा उसने पकड़ ली है। अभी कल्याण बैनर्जी बोल रहे थे कि रास्ता गलत था, तो सबसे गलत रास्ता तो आज भारत सरकार का है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया, शत्रुघ्न जी ने तय किया, हमने तय किया कि हम उस दल में नहीं रहेंगे। और मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अब उम्र हो गई, मुझे किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जीवन में कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जब बंगाल के विधानसभा का चुनाव आया तो उस समय आपको पता होगा कि 2 लोग दिल्ली में सरकार में बैठे थे केंद्र में, जो रोज
अप एंड डाउन कर रहे थे, दिल्ली से बंगाल, बंगाल से दिल्ली वापस। तो रोज अप एंड डाउन करते थे, यहाँ के भाषण देते थे और ऐसा लगता था जैसे कि बंगाल को उनको चबा जाना है, हड़प लेना है, किसी तरह कब्जा कर लेना है। क्यों कब्जा करना है? क्यों कब्जा करना है? वह जब मौका आया तब मैंने सोचा कि अब बगल में बैठने से काम नहीं चलेगा, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, कि आसनसोल के उपचुनाव में मुद्दे क्या हैं, देश के मुद्दे क्या हैं। और मलय घटक जी ने आपको विस्तार से बताया कि कार्यकर्ता के नाते आपका बूथ पर क्या कर्तव्य है। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस विषय को आपके सामने रखा, क्योंकि हम सब अनुभव से जानते हैं कि हार और जीत बूथ पर होती है। बौखला गए, घबरा गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर अभी बंद करने का पहला कोई इलेक्शन देखा है आपने? कोई इलेक्शन याद है जहां पूरे चुनाव तक पब्लिक मीटिंग बंद कर दी गई हो? पब्लिक मीटिंग बंद कर दी गई हो, स्पीकर बंद कर दिया गया हो। इंडोर तो कर सकते हैं, आउटडोर नहीं कर सकते हैं। मैंने देश का मैं बहुत बड़ा स्टार प्रचारक कई बार रह चुका हूं। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, कैबिनेट मिनिस्टर, 4 बार MP रहा। मैंने अपने जीवन में, कल्याण बाबू आपने भी, अब किसी ने नहीं देखा होगा कि पूरे इलेक्शन तक जयप्रकाश बाबू बंद ही कर दिया। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि कारण कुछ और है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उन्हें लग रहा है कि इतना आपका हुजूम, आवाम, इतना आपका रिस्पॉन्स और जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है, एक क्रेज और हिस्टीरिया दिखाई पड़ रहा है आपके ममता जी के प्रति, तृणमूल कांग्रेस के प्रति, या आपके अपने उम्मीदवार के प्रति। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इसी बौखलाहट और घबराहट से कहीं ऐसा ना हो गया हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। कि सामने वाले के यहाँ अभी तो लग रहा है कि वन साइडेड दिख रहा है। हालांकि किसी चुनाव को लाइटली नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन वन साइडेड दिख रहा है। वहां पे अगर 50 आदमी, 25 आदमी, वहां पे ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं, भेजा जा रहा है बिहार से, कि हमारे बिहार से या दिल्ली से, जहां जहां से कुछ केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं जिनको उनके घर में नहीं पहचानते लोग। वो आ रहे हैं, उनको आसनसोल में कौन पहचानेगा? वो अपनी पहचान बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। बहुत सारे नेता जो आ रहे हैं प्रचार करने उधर उस पार्टी में, वो तो मर्सी पिटीशन केस है, यानी उनका मर्सी पिटीशन है, उनके मर्सी पे हैं वो लोग, और उसमें उसको मर्सी पिटीशन केस बनकर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमने ये जो स्पीकर मीटिंग बैन देखी है, यहाँ स्पीकर बंद किया गया है शाम को, तो हम लोग रोड शो से काम चलाते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग सब आते हैं वहाँ पे, आपका परिवार आता है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। 2 चीजें, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और ये सरकार जानती है कि महंगाई चरम पर है, उसके बावजूद आग में तेल डालने का काम कर रही है। कैसे कि रोज़ कीमतें बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल की, गैस की। और सब लोग जानते हैं कि डीजल का सबसे ज़्यादा उसकी खपत होती है ट्रांसपोर्ट में, उद्योग में। और अगर वो जो डीजल की कीमत बढ़ेगी, 10 रुपये बढ़ गया 12 दिन में, तो उसका सीधा असर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, ट्रांसपोर्ट पर। तो सब चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी। तो पहले से ही महंगाई है, और अब ये आग में तेल डालने से महंगाई और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी उसके चलते और आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत आज खतरे में है।
आप देश के विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। यह हालात अभी जब जंग भी छिड़ा हुआ है, देश का जो रवैया है वोट नहीं देने का यूनेस्को में, ये सब स्टैंड की ठीक रहता है? देखिए, रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है, बहुत दिनों से मित्र है। हर मौके पर रूस काम आया है भारत के लिए। लेकिन एक दोस्त के नाते, दोस्त अगर गलती करता है ना, तो दोस्त का दूसरा दोस्त जो है उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्त को कहे कि तुमने गलती करी, अब मत गलती करो। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो एक उसका मानवीय पक्ष है, इतने लोग वहाँ पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, घर नष्ट हो रहे हैं, उद्योग नष्ट हो रहे हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को सबसे पहले मध्यस्थता की भूमिका में आनी चाहिए थी। यूक्रेन भी हमारा मित्र है, रूस भी हमारा मित्र है, तो हम सबसे अच्छे पोजीशन में थे ये कहने के लिए कि इस युद्ध को रोको। तुरंत विदेश मंत्री को जाना चाहिए था मॉस्को, तुरंत उनको जाना चाहिए था कीव, और दोनों जगह जाके ये युद्ध को रुकवाने का काम करना चाहिए था। तटस्थता ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मध्यस्थता भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा। आसनसोल का सोल बताया, देश का सोल, अब आसनसोल का सोल बताया, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है और देश की निगाहें आसनसोल पर टिकी हैं। क्यों टिकी हैं आसनसोल के चुनाव पर? इसलिए कि यहाँ पर जो स्टेक पर है वो क्या है? वो है देश का सोल। आसनसोल में अटका है देश का सोल। देश का सोल मतलब देश की आत्मा। यहाँ से जाएगा कि आत्मा सही दिशा पकड़ेगी देश की कि गलत दिशा पर चलती रहेगी, और इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू। सलानपुर थाने के चितलाडांगा गांव के गोलापारा में एक व्यक्ति की उसके ही घर में हत्या कर दी गई। पता चला है कि मृतक का नाम मनोज पातर था और उसके एक मंजिला मकान की छत से खून से लथपथ शव बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक बीती रात मनोज पातर घर की छत पर लेटे हुए थे, तभी अचानक चीख पुकार सुन उनकी पत्नी और बच्चे भी चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। सलानपुर थाना और रूपनारायणपुर चौकी से पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस संदर्भ में उनकी पत्नी मुनमुन पात्रा ने बताया कि उन्होंने समझी के निरंजन पाल और कंचन पाल नाम के 2 लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे। कल उन लोगों के साथ विवाद भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने ही उनके पति की हत्या की है। उधर चीतलडांगा गांव के समीप स्थानीय लोगों ने एक युवक को 2 पैर टूटे हुए हालत में देखा। यही युवक मनोज की हत्या में लिप्त है। इस आरोप में लोगों ने युवक को घेर लिया। बाद में रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ के हाथ से युवक को छुड़ाया। युवक की पहचान निरंजन पाल के रूप में हुई है। वे समझी गांव का रहने वाला है। এখন আমি রাতে ঘুমোচ্ছিলাম, রাতের বেলায় কি দেখলাম আওয়াজ হলো, আমি ফোন করলাম পাশের বাড়িতে, আমি কি দেখো খুব আওয়াজ হচ্ছে, আমি একা উঠতে পারছি না। কোথায় ঘুমাচ্ছিলে? আমি বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলাম, আর ও ছিল ছাদে। ঘুমোচ্ছিলাম, তো আওয়াজ হলো, আমি ভয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘর ঢুকে দিলাম। দিয়ে আমি তারপরে সকালবেলা এখন উঠে দেখছি মাকে আমি এখনো যেতে পারছিলাম না ছাদ ভয়ে, যে আমি কি হয়েছে কি আমি জানতে পারছি না। মা বলি মা চলো তুমি, আমি বুঝতে পারছি না মনে হয় এখনো কেন উঠেনি। তারপর দেখি ঘটনা কি ঘটনা ঘটেছে? ফোন করে দিয়েছে। কে খুন করেছে? নিরঞ্জন পাল আর কাঞ্চন। জানেন আপনি ওদের চেনেন? হ্যাঁ, ওদের চিনি। কোথায় বাড়ি? সামগি। তো যে ছাদ থেকে কি তালাটা বাইরে থেকে লক করা ছিল দরজাটা? না না না, উপরে ছাদে খোলাই ছিল? খোলাই ছিল। আপনার নাম কি? মুনমুন পাত্র। আপনি ওদেরকে দেখেছেন? আমি দেখি ওরা বিকেল বেলা এসেছিল একবার টিয়ার দিতে। কি বলছিল? বলছিল যে ও কই, তা আমার বলেছে মা বলেছে নাই ও। নাই বলেছে, তারপরে মাকে বলে কি বলে গেছে আমি শুনিনি। তখন বলে গেছে মাকে ওকে যে তোর তোর কপাল আজ রাতে দুর্গতি আছে। মাকে ওকে বলেছে। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए कल रात रानीगंज के एक निजी भवन में टीएमवाईसी के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष
शुभो भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जहां तृणमूल कांग्रेस नेत्री सायनी घोष भी उपस्थित हुई। इनके अलावा रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज टाउन ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश यादव, मीर बशर सहित तमाम TMYC कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर 34 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षद माकपा नेत्री शिखा दे ने तापस बनर्जी और रुपेश यादव के हाथों TMC का झंडा थाम लिया। कार्यक्रम के दौरान सायनी घोष ने कहा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो TMC में रहकर भी भाजपा के लिए मतदान करते रहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की कड़ी मजम्मत की, साथ ही भाजपा के नीतियों की भी जमकर आलोचना की। वहीं रुपेश यादव ने भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के पास विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वे सिर्फ धर्म जात पात के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेकती हैं। उन्होंने रानीगंज वासियों से ऐसे फिरका परस्त पार्टी से बचने की अपील की। वहीं शुभो भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा उपचुनाव एक कठिन चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए TMC और TMC से जुड़े हर शाखा संगठन के सदस्यों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने तृणमूल युवा कांग्रेस के हर सदस्य से अपील की कि वे लोगों के घर घर जाएं और कन्याश्री, रूपाश्री, स्वास्थ्य साथी, छात्रों को साइकिल देने सहित ममता बनर्जी सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अगर आगामी लोकसभा उपचुनाव में TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत होती है तो आसनसोल के विकास को गति मिलेगी। मतदान लोग अपने तरीके से करेंगे, अपने सलीके से करेंगे, लेकिन अगर उनको ये साल के 365 दिन तृणमूल कांग्रेस के सारे कर्मियों, तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप उनके साथ है, वो गिनते आंखों में, वो ईद के चांद नहीं है सारे। तो जब ये विश्वास रहेगा, जब उनको पता है कि आज हमारी CM एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो काम करना है वो कर रही है, और हम सब जो सारे यहाँ पे बैठे हैं वो आपका समर्थन, खुद का समर्थन हम सबको वैसे ही देंगे। आगे जाके बहुत बड़ी लड़ाई है, जो जंग होने वाली है उसका ऐलान अभी से हो जाएगा। सबक से अपने कर्म के माध्यम से कि वो खामोश हो जाए, कि वो खामोश हो जाए, और आगे जाके मैं आपसे बोल के कहना करूँ, मैं आज आई हूँ, मैं बार-बार आऊंगी, हमेशा बहुत मेरे दिल के पास रहेंगे और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। कि आप लोग सब काम करते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार, मेरा नमन, और मैं यही चाहती हूँ कि इन दिनों आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रचार का दौर अपने चरम पर है। इसी क्रम में बीते रात आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलाय घटक ने रेल पार के जहांगीरी मोहल्ला इलाके में एक चुनावी सभा की। इस सभा में प्रख्यात पत्रकार अजीज बर्नी खास तौर पर मौजूद थे। इनके अलावा वसीमुल हक सहित तमाम स्थानीय TMC नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। चुनावी सभा के दौरान मलाय घटक ने आने वाले लोकसभा उपचुनाव में TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मतदान करने के लिए सबसे अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार राष्ट्रीय संसाधनों को बेचने की फिराक में है, उसे रोकने की जरूरत है और वे आवाज शत्रुघ्न सिन्हा बन सकते हैं। वहीं अजीज बर्नी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी मजम्मत करते हुए आने वाले लोकसभा उपचुनाव में सभी से शत्रुघ्न सिन्हा को समर्थन करने की अपील की। हमारे कांग्रेस के रहनुमा पे मौजूद है, इस हॉल में मौजूद तमाम शामिल बात
इंतखाब का है। हमारे मोदी साहब भी बोले, मास्टर शकील साहब भी बोले। दरअसल हम लोगों को सुनना है मशहूर साहब भी, हमारे मेहमान अजीज बर्दी साहब आए जो पूरे मुल्क की हालात को बताएंगे आपको। उनकी कलम में वो ताकत है जो परस्तों के खिलाफ अपनी कलम की ताकत से आवाज बुलंद करते रहते हैं। हिंदुस्तान की कोने कोने में, हिंदुस्तान की गोसे गोसे में अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। परस्तों की आवाज उसको दबाने की उनकी जो कोशिश और ये कोशिश उनकी, इनकी जो ताकत कलम में है और ये लड़ाई और जज्बा है, इसकी जज्बा को उन्होंने मगरबी बंगाल का आगे छोड़ के डाल लाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक वाहिद आसनसोल का लोकसभा का ये जमीनी चुनाव और इस आसनसोल के ऊपर में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अवाम का नजर कि आसनसोल की तमाम अवाम, आसनसोल की जनता क्या फैसला लेती है। क्योंकि मुल्क कभी जिस हालात में गुजर रहा है, महंगाई आसमान छू गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जितनी सिन्नतें हैं एक के बाद एक बंद हो रहा है या मोदी सरकार उसको प्राइवेटेशन निजी मालिकों के हाथ में बिक्री कर दे रही है। जो लोग रोजगार से लगे हुए हैं उनका रोजगार आज खतरे में है। रेल जैसा जो संस्था है, रेल जैसा जो डिपार्टमेंट है, वो रेल का आधा से ज्यादा निजीकरण हो चुका है। प्लेटफॉर्म प्राइवेट मालिकों के हाथ में जा चुका है कुछ जगहों पे। कैंटीन जो है वो प्राइवेट मालिकों के हाथ में जा चुका है। रेलवे कैंकोरी जहां पे हम लोग पूछताछ करते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा चुका है। जो लोगों को 30, 40, 50 हजार रुपए तनख्वाह था, आज वहां पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है 10,000 रुपए तनख्वाह में काम करने से। काम कीजिएगा तो काम रहिए, नहीं तो जाइए। जहाँ पे 50 लोग काम करते थे, आज वहाँ पे 5 और 10 लोगों से काम लिया जा रहा है। तो इस तरह से छटाई भी शुरू हो चुका है। तो ये एक तरफ से हमारे ऊपर रोजगार का मार है, इसको हमारे बगल में ये हमारा सनती इलाका जो है, इसको का मॉडर्नाइजेशन जब हमारे वल्लभ बंदोपाध्याय जब स्टैंडिंग कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे लोकसभा में, उनके जमाने में उसका मॉडर्नाइज हुआ था। आज वो इसको अगर फिर ये लोग ताकत पाती है वो इसको भी बन के कगार पे चला जाएगा, इसलिए उसको निजीकरण करने का बहुत कोशिश किया जा रहा है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ नहीं कर रही है। आज की इस लड़ाई में जितना भी जरूरी है, बंगाल में हम लोग दूसरा प्रदेश में जब जाता है, हम लोग बोलता है कि भाई कांग्रेस बीजेपी का पास हार जाता है, सीपीएम बीजेपी का पास हार जाता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को हराता है, तो इस चुनाव में भी हराना है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस चुनाव में आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ दिन आगे कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, आपका बगल में 29 नंबर हुआ, बीजेपी जीत गई। क्यों? अगर माइनॉरिटी वोट कविता यादव को मिल जाता तो बीजेपी हार जाता, बीजेपी हार जाता। उस वार्ड में माइनॉरिटी वोटर है 2100, अगर 80% भी पोलिंग होता तो 1600, और 1600 वोट भी अगर उसको मिलता तो भी उस कैंडिडेट नहीं थे। तो बीजेपी को हराने के लिए कुछ मदद, कुछ प्लान आप लोग को करने पड़ेगा। हमने काम बता रहे थे कि आप लोग हमको 80% वोट दिया, हम जीत गए। बागपुर में सही हार दिया, वहाँ वोटिंग परसेंटेज था 100%। अगर वहाँ 80% वोट नहीं जाता तो साइनी में जीत गए। कुंडी में उच्चर चढ़े थे 800 वोट साल, वहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज था 64%। वहाँ पर भी अगर 80% वोट गिरता तो उच्चर चढ़े थे जीते। तो थोड़ा सा एक दिन का तकलीफ, एक दिन का लड़ाई, हम लोग जैसा क्रिकेट में जब होता है कि 2020 का मैच का माफी हम लोग को करने पड़ेगा। हम जानता है हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। जब हम विधानसभा में खड़े थे, हम हर बूथ पे घूम रहे थे। मुझे ये दांत छिलता है कि नहीं, मेरे पेट में है। तो ये बताओ, ये वाला दांत छिलता है कि नहीं? तो नहीं, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है।
उसने एक झटके में दांत निकाल के बाहर कर दिया। पेशेंट घर से चीखने चिल्लाने लगा, बोले क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द है। बोले पेट का? बोले डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है। बोले अच्छा, तो हमारी मोदी से नया दर्द देखी है और किसी में दर्द का शत्रुघ्न सिन्हा आदमपुर क्यों गया? शत्रुघ्न सिन्हा करप्ट नहीं, बदुमान नहीं, उनके पास वो पैसा नहीं है जो बेचता हो। शत्रुघ्न सिन्हा सांप्रदायिक नहीं, फिरसा परस्त नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा मुसलमान नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा राम मंदिर के विरोधी नहीं है। अब क्या किया जाए? शत्रुघ्न सिन्हा पहाड़ी, मतलब आपने सर्टिफिकेट दे दिया शत्रुघ्न सिन्हा को कि आप इंतहाई नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी हो, आप देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने वाले आदमी नहीं हो, आप राम मंदिर के विरोधी नहीं हो, बस आप बाहरी हो। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी हैं, फिर वाराणसी में जब आप गुजरात से आए थे तो बाहरी थे कि अंदर के थे? जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख यानी 12 अप्रैल नज़दीक आ रही है, सभी सियासी दलों की तरफ से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आसनसोल लोकसभा का यह उपचुनाव सत्ता पक्ष टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि इस सीट पर कभी भी टीएमसी का कब्जा नहीं रहा। यही वजह है कि इस बार टीएमसी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि इस सीट पर टीएमसी जीत हासिल कर सके। इसी क्रम में आज टीएमसी की युवा नेत्री शाइनी घोष ने रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बल्लभपुर इलाके के विभिन्न इलाकों में शाइनी घोष का काफिला गया और उन्होंने लोगों से शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। शाइनी घोष का ये प्रचार बल्लभपुर बस तला मोड़ से शुरू होकर एगरा गांव के दुर्गा मंदिर के निकट आकर खत्म हुआ। रानीगंज के तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने 91 नंबर वार्ड में टीएमसी अल्पसंख्यक सेल की जिम्मेदारी अनवर हुसैन को सौंपी। अनवर हुसैन को 91 नंबर वार्ड टीएमसी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। अनवर हुसैन गिरजापाड़ा इलाके के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर इंतखाब खान ने कहा कि अनवर हुसैन 2010 से भी पहले से टीएमसी से जुड़े हुए हैं और उनको आज 91 नंबर वार्ड में अल्पसंख्यक सेल का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा किसी और उम्मीदवार के पक्ष में मतदान ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी अनवर हुसैन को सौंपी गई है। वहीं अनवर हुसैन ने नया पद मिलने से खुशी जाहिर की और कहा कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जीत दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर इंतखाब खान, अनवर हुसैन के अलावा संगठन के सचिव आफ्ताब जाहिद भी उपस्थित थे। से आपको एक पद दिया गया, 91 नंबर का वार्ड प्रेसिडेंट बनाया गया, कैसा क्या फील कर रहे, कैसा लग रहा है? 91 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया ब्लॉक माइनॉरिटी सेल का तृणमूल कांग्रेस का प्रोफेसर इफ्तिखार खान है जो प्रेसिडेंट, वो हमको आज दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, इसका लेके हमको काम करने पड़ेगा। ये पद लेने के बाद पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप घर घर जाके सबको बोलना है, किसी को वोट देना है, शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना है, जहाँ और दीदी का हाथ मजबूत करना है। आपका नाम क्या? मेरा नाम अनवर हुसैन। माइनॉरिटी सेल की तरफ से क्या कार्यक्रम किए हैं? तो ये रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आज हमारे बीच हमारे कुछ माइनॉरिटी के जो वार्ड प्रेसिडेंट हैं उन सबों को बुलाया गया है और उनके साथ साथ हमारे 91 नंबर वार्ड के जो वार्ड प्रेसिडेंट को हम लोगों ने जिनको वार्ड प्रेसिडेंट बनाया है वो हमारे बहुत ही पुराने पार्टी के कारकुन हैं और बहुत ही दिनों से वो पार्टी कर रहे हैं। आज 2010 के पहले से ही वो पार्टी कर रहे हैं और पार्टी में बहुत ही पुराने होने के साथ साथ सीनियर भी हमारे हैं और वो अनवर भाई हमारे अनवर हुसैन के नाम से जानते हैं, वो अनवर भाई सब उनको बोलते हैं। आज उनको हमने वार्ड नंबर 91 का बहुत दिन पहले ही उनको बनाया गया था, पर उनको आज कागज़ हमने एक
अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के बैनर है, झंडे, ये सब देकर उनको बोला है कि वार्ड को बढ़िया से काम करिए और वार्ड में अपना जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हमारे आफ्ताब जहीदी साहब है, उनको लेकर दोनों मिलकर वार्ड 91 में जितने भी माइनॉरिटी वोट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तृणमूल में पोलिंग करवाइए और पूरे वोट को तृणमूल के सिवा किसी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से पूरे बंगाल के अंदर में लोगों के लिए काम कर रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी आज पूरे बंगाल को अपना नाम और छाप छोड़ के गई है, इसके वजह से आज शत्रुघ्न सिन्हा को हमारे माइनॉरिटी एक भी वोट बर्बाद ना होना चाहिए। ना कांग्रेस ना CPM ये सब कोई कुछ काम के नहीं है, ये सब बीजेपी का एक हाथी है। इनको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। तृणमूल का एक भी वोट माइनॉरिटी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये माइनॉरिटी के सभी लोगों से हमारा निवेदन और गुजारिश है। इसके साथ साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। मैं रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद इंतखाब खान।